Good morning, class 11th. Today we are going to discuss exercise 2.2 of chapter 2, that is relation and function. In the previous video we have already discussed question number 1 and 2. Question number 3, a is equal to 1 2 3 4 5 and b is equal to 4 6 9. Define a relation R from a to b by R x comma y. The difference between x and y is odd where x belongs to a and y belongs to b. Write R in roster form. You have given a two sets, set A and set B, and the relation is the difference between x and y is odd. You have to write the relation R in the roster form. That means you have to write the ordered pair. Here is your set A, this is your set B. Now find out the difference between x and y. So 1 and y is odd. So 1 and 4, the difference, if you find the difference between 1 and 4, it is 3. 3 is your odd number. Then 1 and 6, the difference between 1 and 6 is 5. 5 is odd number. If you talk about 1 and 9, the difference between 1 and 9 is 8, and 8 is even number, so we cannot consider 1 and 9. Next is 2 and 4, the difference between 2 and 4 is 2, that is an even number, so we cannot consider that ordered pair. 2 and 6, it is an even number, 6 minus 2 is 4. 2 and 9, 9 minus 2 is 7, so your next ordered pair is 2 and 9. Next is 3 and 4, the difference between 3 and 4 is 1, that is an odd number. Next is 3 and 6, the difference between 3 and 6 is 3, that is an odd number. 3 and 9, the difference between 3 and 9 is 6. 6 is an even number, so you cannot consider that ordered pair. Next is 5 and 4, difference between 5 and 4 is 1, that means it is a odd number. Next is 5 and 6, the difference between 5 and 6 is 1, it is an odd number. Next is 5 and 9, the difference between 5 and 9 is 4, 4 is an even number, so we cannot consider that ordered pair. So the relation is 1 4, 1 6, 2 9, 3 4, 3 6, 5 4 and 5 6. Question number 4. The given figure shows the relationship between the set P and Q. Write this relation in set builder form in roster form. Write its domain and range. You have given two sets, set P and set Q, and this is your arrow diagram. You have to write the relation between P and Q in set builder form and in roster form. So according to the figure, P is a set having element 5 6 7 and Q set having element 3 4 5. Now relation, what type of relation you can find? If you see the relationship between 5 and 3, 6 and 4, 7 and 5. So in roster form we have three ordered pair, that is 5 3, 6 4, 7 5. Now we have to find the relationship in set builder form. R x comma y is equal to x minus 2 where x belongs to P. Or you can write xy where y is equal to x minus 2 for x 5 6 7. आपको क्या करना है, आपको x P और Q के बीच में रिलेशन निकालना है. रिलेशन आप जो निकालेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर को ध्यान में रखते हुए निकालेंगे. अगर आप देखें यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में 5 और 3 है. ये कब हो सकता है, जब हम x वाली टर्म में से 2 माइनस कर दें, तभी तो हमारे पास y3 आ सकता है. यहाँ से देखिए 6 माइनस 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 5 7 माइनस 2 करेंगे 5 आ जाएगा. तो आपने यहाँ पे जो रिलेशन बनाया वो रिलेशन बनाया कि x कॉमा आपके कॉमा y एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा. कब, जब y की वैल्यू होगी हम x की वैल्यू में से 2 माइनस कर दें, और x कहाँ से बिलोंग करेगा, P से. नाउ वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस सेट. डोमेन दैट इज 5 6 and 7, and if you talk about range, that is 3 4 and 5. Question number 5. Let A is equal to a set which consists of element 1 2 3 4 6. There is no 5, only 6. Let R be the relation on A defined by AB. A comma B belongs to A. B is exactly divisible by A. आपको यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करने हैं जो एक रिलेशन से बाउंड है. तो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है
बी टर्म होनी चाहिए वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो ए से, कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो डिविजिबल ना हो। तो आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यू हैव टू फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। अब आपने नंबर लिया, आपके पास है 1 2 3 4। आप पहले ए का ए में ही मैपिंग हो रही है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि ए की मैपिंग ए के साथ है, यानी कि जो दोनों जो सेट्स हैं उसमें दोनों तरफ एक ही टाइप के एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर के 6 तक एक्सेप्ट 5। तो आपने 1 लिया ए और बी लिया 1 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास आ गया 1 1। 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 1 से कर सकते हैं, 6 को भी 1 से कर सकते हैं। तो आपके पास पहले तो ये निकल के आ गए ऑर्डर पेयर। अब आप देखिए, क्या आप 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट डेसिमल आंसर, तो आप इसे कंसिडर नहीं करेंगे। आप 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। आप क्या 3 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नो, आपके पास एक डेसिमल वैल्यू आएगी, तो आप इसे कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज़ 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यू विल गेट 2, तो आपके पास आ गया 2 4। नेक्स्ट इज 6 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट 3, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 2 6। नेक्स्ट इज 3, क्या आप 1 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? नो। क्या आप 2 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? नो। 3 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास आ गया 3 3। आप क्या 4 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? नो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज, क्या आप 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो आपके पास आ गया 3 6। नेक्स्ट है आपके पास 4, क्या आप 1 2 3 को डिवाइड कर सकते हैं? 4 से नहीं कर सकते। आप 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका आंसर है 4 4। नेक्स्ट इज 6 भी ऐसा नंबर है जो खुद से ही डिवाइड होगा, दैट इज 6 6। इफ़ यू टॉक अबाउट द डोमेन ऑफ दिस सेट्स, तो दैट इज़ 1 2 3 and 4, and the last one is 6. The domain consists of elements 1 2 3 4 6, and if we talk about the range, that is 1 2 3 4 and 6. Question number 6, determine the domain and range of the relation R defined by R is equal to x plus 5, where x is equal to 0 1 2 3 4 5। आपको बोला गया है डोमेन और रेंज फाइंड करिए। जो रिलेशन से बना हुआ है वो रिलेशन क्या है आपके पास? x, x प्लस 5, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें आप x की वैल्यू तो रखेंगे और जो y है उसमें आप क्या करेंगे? x में 5 ऐड करते जाएंगे। जैसे आपने यहाँ रखा x की जगह पे 0, तो यहाँ पे क्या लगेगा 0 प्लस 5, तो 0 प्लस 5 इज़ 5, तो पहला रिलेशन क्या निकल के आया? 0 5। नेक्स्ट रखा आपने 1 x की जगह पे और यहाँ पे हो गया 1 प्लस 5, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 6। नेक्स्ट रखा आपने 2, तो ये 2 प्लस 5 दैट इज़ 7। नेक्स्ट रखा 3 प्लस 5 इज़ 8। नेक्स्ट रखा 4 प्लस 5 इज़ 9। नेक्स्ट इज़ 5 प्लस 5 इज़ 10। तो ये आपके पास रिलेशंस निकल के आ गए। इफ अब नेक्स्ट है आपका डोमेन फाइंड करना है, तो डोमेन क्या होगा? 0 1 2 3 4 एंड 5। एंड नेक्स्ट लास्ट इज रेंज, रेंज इज़ 5 6 7 8 9 एंड 10। Write the relation R x comma x cube. X is a prime number less than 10 in roster form. आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पे आप रिलेशन निकालिए। x क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए और लेस देन 10 हो। लेस देन 10 में अगर जो हम प्राइम नंबर्स देखें तो कौन कौन से आएंगे हमारे पास? 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो पहला प्राइम नंबर तो हो गया 2, नेक्स्ट हो गया 3, नेक्स्ट हो गया 5, देन आपके पास आएगा 7, इसके बाद 9 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर और 10 तो हमें करना ही नहीं कंसिडर क्योंकि उन्होंने बोला लेस देन 10। तो आपके पास प्राइम नंबर आपके पास निकल के आ गए 2 3 5 7। अब आप x की जगह पे रखेंगे 2, तो रखा 2 और यहाँ पे हो जाएगा x का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब दैट इज़ 8। फिर रखा 3 का क्यूब दैट इज़ 27, देन 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343। Question number 8, let A is equal to xyz and B is equal to 1, 2. Find the number of relation from A to B. आपको क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं A से B में। नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने के लिए हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स, x, 1 x, 2 y, 1 y, 2 z, 1 z, 2. Now we have to find the number of relation. Number of relation is equal to 2 की पावर a क्रॉस b, that is ab.
तो दैट इज़ 2 की पावर 6. तो नंबर ऑफ रिलेशन यू फ्रॉम A to B इज़ 2 की पावर 6. Question number 9. Let R be the relation on Z defined by R. AB. AB belongs to Z. Z is an integer. A minus B is an integer. Find the domain and range. आपके पास रिलेशन दे रखा है कि A माइनस बी भी आपके पास एक इंटीजर आना चाहिए, तो अब इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करिए. R is equal to AB, where AB belongs to an integer. A minus B is integer. It is known that the difference between any two integer is always an integer. आप किसी भी दो इंटीजर्स के बीच डिफरेंस फाइंड करिए, आपके पास इंटीजर्स ही आएगा. तो इसकी जो डोमेन होगी उसमें भी इंटीजर्स होंगे और जो रेंज होगी उसमें भी क्या होंगे, इंटीजर्स ही होंगे.